Today I will start the electric potential chapter of the electrostatic, that is next to the field চ্যাপ্টারটা আমি সমস্ত ভিডিও পাঠিয়ে দিয়েছি, পড়িয়েও দিয়েছি। তার মানে এই নয় যে এটা পড়াবো না। In the next class you will get enough time. I mean to say for the particularly new students যারা আছো, তারা enough time পাবে সামনে শুক্রবারের আগে তোমরা ভিডিওটা দেখে, যেই ভিডিওগুলো আমরা পাঠিয়েছি কালকে না আজকে, সেগুলোর থেকে আমাকে কোশ্চেন জিজ্ঞেস করো, ঠিক আছে? তো আজকে আমরা যেটা চ্যাপ্টারটা স্টার্ট করব, that is electric potential. I am writing the heading. হ্যাঁ বলো। স্যার বলছি যে এই ইলেকট্রিক যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা হয়ে গেল, ওইখানে যে ফোর্সের কিছু নিউমেরিক্যালস আছে, ওগুলো কি আপনি করাবেন পরে? আমি পরে করাবো, তো বেসিক জিনিস বলে দিয়েছি, অঙ্কও দিয়েছি, আবার এই চ্যাপ্টার পরে রিভিশন হবে। আচ্ছা, ইলেকট্রিক পোটেনশিয়াল ব্যাপারটা বোঝার আগে আমাদের বেসিক পোটেনশিয়ালের কনসেপ্টটা আগে বুঝতে হবে, অন্যভাবে বুঝতে। পোটেনশিয়াল জিনিসটা কখন আসে দেখো, এর জন্য বেশি কিছু বুঝতে লাগবে না। পোটেনশিয়াল কনসেপ্টটা কিন্তু আমরা ক্লাস 9 থেকে পড়ে আসছি। পোটেনশিয়াল মানে কোন জিনিসে, যদি অন্য দিক দিয়ে দেখি, একদম আমরা যদি ফার্স্টে চলে যাই, যেটা পড়েছিলাম গ্র্যাভিটেশনের ক্ষেত্রে পড়েছিলাম, ধরো এটা পৃথিবীর আর্থের সারফেস, লেট ইট বি এ আর্থ সারফেস। তো পৃথিবীর সারফেসের উপর ধরো একটা বল আছে, সাপোজ একটা বল আছে, তার মাস কত এম। এইবার এই বলটাকে যদি তুমি একদম পৃথিবীর সারফেসের উপর আছে, মাটিতে আছে, কোনো প্রবলেম নেই, ও অ্যাজ ইট ইজ যেখানে ছিল সেখানেই আছে। এবার এই বলটাকে যদি তুমি পৃথিবীর সারফেস থেকে এইচ হাইটে তুলে নিয়ে যাও, তাহলে এই হাইটে ওর একটা গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়, তাই তো? বা সিম্পল পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়। আমি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি এন্ড পোটেনশিয়াল এনার্জি এর ডিফারেন্সে যাচ্ছি না, সিম্পল একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি হয়। ইয়েস অর নো? সেই পোটেনশিয়াল এনার্জির ভ্যালু কত? অল অফ ইউ নো ফ্রম দ্য ক্লাস 9, mg into E. Yes or no, Devlina and all of you know this? একটু রিপ্লাই দেবে। Devlina, Ria and আর যারা আছো সবার নাম দিতে পারছি না। তো এই পোটেনশিয়াল এনার্জিটা আসছে কেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন বিহাইন্ড দ্য পোটেনশিয়াল এনার্জি? বলটা যখন মাটিতে আছে, ওর ভেতরে পোটেনশিয়াল এনার্জি 0, তাই তো? বিকজ যখন এখানে আছে h কত 0, যখন দ্য বল ইজ অন দ্য সারফেস অফ দ্য আর্থ, h ইজ 0, so potential energy is 0, that is m into g into h কত 0, তাই 0 হচ্ছে। দেখো, যে কোনো জিনিসের পোটেনশিয়াল মানে কি, আগে পোটেনশিয়াল জিনিসটা দেখো। পোটেনশিয়াল মানে কি, তো সিম্পল ভাবে যদি দেখি, এমনি নর্মাল ফিজিক্সের অ্যাঙ্গেল থেকে যদি নাও দেখি, পোটেনশিয়াল মানে যার মধ্যে কিছু কাজ করার ক্ষমতা আছে। ইয়েস অর নো? তাই তো বলি না আমরা, এর মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, এই ছেলেটার মধ্যে পোটেনশিয়াল আছে, মানে ও কিছু করে দেখাতে পারে বা করতে পারে, হি হ্যাজ সাম ক্যাপাবিলিটি। তো সেই আঙ্গিকেই দেখো, সেই কনসেপ্টে যদি একবার ভিজুয়ালাইজ করো, বলটা যখন মাটির মধ্যে আছে, সারফেসে আছে, ও কিন্তু যেখানে ছিল সেখানেই আছে, ও কিন্তু কোনো কাজ করছে না, ওর মধ্যে কোনো কিছু করার ক্ষমতা নেই, ক্যাপাসিটি নেই। কিন্তু বলটাকে তুমি এই হাইটে তুলে ছেড়ে দাও, বলটা মাটিতে ছিল, ছেড়ে দিয়েছো, ওখানেই আছে। বলটাকে এই সাইডে তুলে ছেড়ে দাও, কি হবে? বলটা নিচে পড়বে না নিজের থেকে? তোমার কি ও বলটা ওপর থেকে নিচে আসতে গেলে, আচ্ছা যে নাকি হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ আছে, সে বুঝতে পারছো আমার কথা? একটু রিপ্লাই দেবে। তার নামটা সামিয়া। আর ইউ এবল টু আন্ডারস্ট্যান্ড মাই ল্যাঙ্গুয়েজ? I forgot that I have to explain in the Hindi or English. Samia, are you in the class? Yes. Are you able to understand my language? Yes, sir. Okay. So what I am trying to tell you that if the ball is on the surface of the earth, it has no capacity of doing any kind of work. But when the ball is at a height h, and if you release hand, what will happen? Suppose you have lifted the ball at a height h and तुमने यहाँ से उठाने के बाद हाथ छोड़ दिया, तो तुम्हें बॉल अपने आप नीचे जाएगा, है कि नहीं? तुम्हें अलग से इसको नीचे जाने के लिए फोर्स नहीं देना पड़ेगा। और जब ये बॉल सिर्फ पृथ्वी के सरफेस के ऊपर था, तुम अगर हाथ छोड़ दो तो कुछ नहीं होगा, वो वही के वही रहेगा। तो दोनों पॉइंट, अगर ए पॉइंट हम दे, सपोज ए पॉइंट इज ऑन द सरफेस एंड बी पॉइंट इज ऑन द एट ए हाइट एज, तो दोनों पॉइंट के अंतर क्या है? तो दोनों पॉइंट का डिफरेंस यही है, जब बॉल बी पॉइंट पे रहेगा, वो अपने आप कुछ कर दिखाने का क्षमता रख रहा है, वो कुछ कर रहा है।
लेकिन ए पॉइंट पे जब है वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सो यही से आया पोटेंशियल एनर्जी, है कि नहीं। नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस पोटेंशियल एनर्जी। ये जो एक ही चीज जब एक पॉइंट पे रह रहा है, बी पॉइंट पे है, तो वो कुछ कर दिखाने का क्षमता रहा है। ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। तुम ऑल ऑफ यू रीड दैट। सपोज यही पिक्चर हम दोबारा ड्रॉ कर रहे हैं, यही बॉल है जिसका मास m ए पॉइंट पे है, तुमने इसको h हाइट, यू हैव लिफ्टेड द बॉल एट ए हाइट h। इसके लिए तुम्हें काम करना पड़ा था। सपोज यू आर लिफ्टिंग द बॉल एट ए हाइट h, फॉर दैट व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू लिफ्ट द बॉल एट ए हाइट h। तुमको इस बॉल के ऊपर एक फोर्स देना पड़ रहा है, देना पड़ रहा है कि नहीं। बिकॉज mg इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अर्थ एंड द बॉल। ये mg फोर्स क्या है, पृथ्वी इस बॉल को अपने सेंटर की तरफ mg बॉल से, mg फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। यस और नो, ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। सो व्हेनेवर यू आर लिफ्टिंग द बॉल एट हाइट h, you have to do some work against the gravity। पृथ्वी का मध्याकर्षण जो बल होता है उसके अगेंस्ट में तुम्हें कुछ काम करना पड़ता है। You are doing some work against the attraction force of the earth। What is the work that you are doing while you are lifting the ball at a height h? You know the formula of work. Work is equal to force into displacement। Yes or no? तो यहाँ पर तुम्हें कितना फोर्स देना पड़ेगा इसको उठाने के लिए। मिनिमम पृथ्वी जितना फोर्स दे रहा है मिनिमम उतना फोर्स तुम्हें ऊपर की तरफ देना पड़ेगा, तभी ये बॉल क्या होगा, द यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जाएगा। तो क्या होगा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स यू हैव टू अप्लाई हियर, मिनिमम mg अमाउंट ऑफ फोर्स देना पड़ेगा, है कि नहीं। सो फोर्स इज इक्वल टू mg। और व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच डिस्प्लेसमेंट कितना है, h। यस और नो, d का वैल्यू क्या है, h और f mg। तो कितना वर्क किया तुमने जब बॉल को ए पॉइंट से बी की पॉइंट की तरफ ले गया, कितना काम किया, mg h। सो दिस इज द वर्क डन बाय यू व्हाइल यू आर लिफ्टिंग द बॉल फ्रॉम ए टू बी। सो देखो यही वर्क जितना तुमने काम किया था वही वर्क उस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होकर रह गया। सो वर्क डन बाय यू व्हाइल यू आर लिफ्टिंग द बॉल is being stored as a potential energy at a point B। All of you understand? Yes or no? So this work done, remember this work done is done by you in lifting the ball from A to B against the force of gravity। पृथ्वी के आकर्षण बॉल के खिलाफ तुम्हें यह काम करना पड़ा, है कि नहीं। तभी तो जब जितना बॉडी का मतलब बॉल का मास ज्यादा होगा तुम्हें उतना ज्यादा काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यू आर डूइंग सम वर्क, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट सम फोर्स, है कि नहीं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। अगर कोई तुम्हें हेल्प करेगा तो वो काम नहीं होता। इफ यू आर डूइंग सम वर्क अगेंस्ट समवन, दैट मीन्स यू आर डूइंग सम वर्क। आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स। तो जब भी कोई किसी फोर्स के अगेंस्ट में काम करेगा तभी वो काम उसके भीतर पोटेंशियल की एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो लाइक दैट। जब भी पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट रहेगा यही आएगा। तो ध्यान से सुन लो, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। फॉर पोटेंशियल डिफरेंस आई विल गिव अ पीडीएफ नोट्स फ्रॉम SL Arora। सो सपोज देयर इज अ चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस। हाँ बोलो। স্যার লাস্টে যেটা বললে একটু আরেকবার বলবেন, কি বললেন বুঝতে পারলাম না। अच्छा পরে বলছি আমি, बिकॉज आई कांट रिपीट नाउ, लेट मी कंप्लीट। तो ये एक चार्ज है जिसका नाम है Q1। सपोज दिस चार्ज इज सिंपल Q प्लस Q प्लस Q। सो आई एम राइटिंग ए स्ट्रेट लाइन। सपोज दिस पॉइंट this point is at a distance d from Q। प्लस Q से कितना डिस्टेंस है, सपोज हम कुछ अभी नहीं बोलेंगे। सपोज ये एक पॉइंट है और दूसरा एक पॉइंट है, एक ही लाइन के ऊपर ये दूसरा पॉइंट है। यहाँ पर अभी फिलहाल कितना है, एक ही चार्ज है, प्लस Q चार्ज।
तो ध्यान से देखो, सपोज you have another charge q1 here. Suppose you have another charge q1 which is also positive. ये q1 चार्ज किधर है ना, b पॉइंट में है। b पॉइंट में कौन सा चार्ज है, q1। अगर इस q1 पॉजिटिव चार्ज को तुम b पॉइंट से a पॉइंट की तरफ लाओ, if you are bringing a q1 positive charge from b to a, will you do some work or not? Tell me. A point is towards the plus q charge. ये सपोज ये प्लस q चार्ज किधर है ना, ये x पॉइंट है सपोज। तो q1 चार्ज को अगर b पॉइंट से a की तरफ तुम ला रहे हो, जो कि x पॉइंट की तरफ है, whenever you are bringing a charge plus q1 from b to a, will you do some work or not? Obviously you are doing some work. Why? Because ये भी प्लस q है, ये भी प्लस q1 है, तो दोनों में क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स होगा। ये सब नो रिपल्शन। यस सर। ये रिपल्शन की वजह से क्या होगा, प्लस q1 को इधर फोर्स देगा, ये आने के लिए बाधा देगा। इट विल रिपल्स द q1 चार्ज। तो तुम्हें क्या होगा, कॉन्स्टेंटली इसके इन दोनों के भीतर जो रिपल्सिव फोर्स है उसके अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है तुम्हें। While you are bringing the charge plus q1 from b to a, तो तुम्हें एक काम करना पड़ रहा है against the repulsive force। तो तब यही होगा, whenever you are bringing the plus q1 charge from b to a, मान लो तुम b से a की तरफ इस चार्ज को लाकर यहाँ पर रख दिए। पहले ये चार्ज q1 इधर था, b पॉइंट में था, अब इसको इधर ला दिए। तो क्या हुआ, तुमने कुछ काम किया अगेंस्ट होम, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स, और यू कैन से कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स, है कि नहीं। इस फोर्स के खिलाफ तुमने कुछ काम किया। यही काम इसके भीतर क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर रहेगा। अगर तुम बी पॉइंट से एक पॉइंट में रख दो तो उसके भीतर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। अभी बोलेंगे क्यों ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से देखो, ये क्या था, ये बॉल को तुमने सरफेस से h हाइट में लाकर रख दिए, तो तुम्हें इस केस में किस फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ा, व्हाट काइंड ऑफ फोर्स इज देयर अगेंस्ट होम यू हैव डन सम वर्क। इस केस में यू हैव डन द वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। यस और नो? यस। So, इसीलिए ये काम कैसे है, कैसे पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब इस मामले में तुम्हें कौन सी फोर्स के खिलाफ काम करना पड़ा, इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन दिस केस इट इज इलेक्ट्रिक रिपल्शन और कूलम्बिक रिपल्शन। इसीलिए ये पोटेंशियल एनर्जी कैसे स्टोर हुआ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, शॉर्ट में पीई बोल दिया हम। अंडरस्टैंड? यस और नो? तो यही क्या होगा, यही होगा B पॉइंट, तुमने क्या किया, B पॉइंट से A पॉइंट की तरफ लाके रख दिया। B पॉइंट पे था Q1, उसको A पॉइंट पे लाके रख दिया। तो यही काम इन दोनों के भीतर क्या होगा। सो दिस वर्क डन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, पोटेंशियल और डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस between A and B. Understand? I will discuss in detail mathematics. Understand? देखो यहाँ पर क्या था, ये mgh क्या था, ध्यान से देखो तो A पॉइंट और B पॉइंट दोनों के भीतर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस क्या था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस A और B पॉइंट के भीतर कितना था, mgh। क्यों, A पॉइंट का पोटेंशियल 0 और B पॉइंट का पोटेंशियल mgh, तो दोनों के भीतर अंतर कितना हुआ, दोनों mgh हुआ। तो यहीं पर भी सेम, तो B और A के भीतर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A और B क्या होगा, तो वर्क डन बाय यू। ये हम समझाने के लिए बोल रहे हैं, अभी हम मैथमेटिकली भी दिखाएंगे। सो वर्क डन बाय यू, सपोज द वर्क डन बाय यू इन ब्रिंगिंग द पॉजिटिव q1 चार्ज फ्रॉम here to there B to A is being stored as potential energy difference. Now ये तो कॉन्सेप्ट गया, अभी प्रॉपर डेफिनेशन में हम आ रहे हैं। यहाँ पर
पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे डिफाइन किया गया, ध्यान से देखो। हाउ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड। यहां पर क्या किया ना, तुमने प्लस Q1 चार्ज को, हमने देखो प्लस Q तो है, इसको हम हाथ नहीं लगा रहा है। व्हाट आई एम टेलिंग, प्लस Q1 चार्ज को B से A पॉइंट की तरफ लाने के लिए तुम्हें कितना काम करना पड़ा, W। यस और नो रिप्लाई दोगे ऑल ऑफ यू। ये हम अब डिलीट कर रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट अभी हो गया। सो इन दिस केस क्या हुआ, प्लस Q1 चार्ज को टू ब्रिंग प्लस Q1 चार्ज फ्रॉम B to A, how much work is done, W। ये सब ना देखो, B से A की तरफ प्लस Q1 चार्ज को लाने के लिए कितना काम करना पड़ा, W। So 1 unit charge, that means to bring plus 1 coulomb charge from B to A, कितना वर्क करना पड़ा, कितना वर्क करना पड़ेगा, W by Q। So this is known as the potential energy difference between B and A. That means work done in bringing unit positive charge from B point to A point is called the electric potential difference. So potential difference को अगर तुम ऐसे बोलोगे, suppose B point का potential है VB और A point का potential है VA, so potential difference कितना हुआ, VA minus VB, final point minus initial point, it is equals to W by Q1. All of you understand? Yes. Now I will go to the mathematical discussion. This is very easy. Now this is the potential, this is the concept of potential difference. Now I will go to the point of what is the exact potential of a point. How the potential of a particular point is defined. मतलब how we can define VA का वैल्यू कितना होगा, VB का वैल्यू कितना होगा। हमने यहाँ पर क्या निकाला, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाले हैं, है कि नहीं। अभी हम क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट का पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ये हम समझेंगे। हाउ द पोटेंशियल ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट इज डिफाइंड। ग्रेविटेशन चैप्टर जब तुम लोगों ने पढ़े थे क्लास 11 में, तब भी ये पढ़े थे। क्या हुआ था, इन्फिनिटी से, सपोज इस पॉइंट का तुमने ग्रेविटेशनल, सपोज यहाँ पर एक अर्थ है, प्लेनेट है, इस प्लेनेट से यहाँ का दूरी सपोज व्हाट एवर में बी द डिस्टेंस R और X व्हाट एवर, तो इस पॉइंट पे आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल मैथमेटिक्स और द डेफिनेशन, आई एम जस्ट रिमाइंडिंग यू द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल दैट यू लर्न इन द क्लास 11। ये भी सिमिलर है। किसी पॉइंट में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर तुम निकालोगे, वो कैसे निकाले थे ना, देयर वाज अ डेफिनेशन दैट इन ब्रिंगिंग यूनिट मास, याद है, इन ब्रिंगिंग यूनिट मास ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, in bringing unit mass from infinity to that point, the work done required is the gravitational potential energy, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं GPE of that point. Yes or no? Reply दोगे। It was the basic concept behind the story of gravitational potential energy. All of you please reply. Yes or no? Yes sir. तो यहाँ पर भी सेम होगा। किसी भी पॉइंट का अगर तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, व्हाट विल बी दैट, हम फिर से वही ड्रॉ कर रहे हैं, फिर से हमें वो Q1 चार्ज, Q चार्ज ड्रॉ करना पड़ेगा। और इसके मान लो यहाँ पर R डिस्टेंस में दूसरा पॉइंट है A पॉइंट, तो A पॉइंट या फिर B पॉइंट, व्हाट एवर, B पॉइंट रख दिया, तो B पॉइंट विच इज एट ए डिस्टेंस, अच्छा Q चार्ज प्लस Q चार्ज X पॉइंट में है, तो B पॉइंट इज एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द Q प्लस Q चार्ज, तो B पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट सेम। यहाँ पर क्या था ना, एक यूनिट मास था, तो यहाँ पर क्या होगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, जो हमने डेफिनेशन में ही बोले थे।
in bringing unit just a minute, unit positive charge, in bringing unit positive charge from infinity to that point is called electric potential at that point. Yes or no? सेम कॉन्सेप्ट, बस किसका खेल है, एक में ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फोर्स था, अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स है, बाकी सब कॉन्सेप्ट है सेम. वहां पर मास की वजह से चेंज हो रहा था, यहाँ पर यूनिट मास था, यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज है. सो इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट. यस और नो? अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? यस और नो? Yes, sir. नाउ सी आई एम ड्राइंग. नाउ द जो कैप्शन होगा वेरी इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. दिस इज वेरी, ये डेरिवेशन आता है लगभग, इंपॉर्टेंट है ये. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज at a point. ये हम अभी बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. देखो सेम जो पहले कौन सा चार्ज था, पहले वहां पर प्लस क्यू चार्ज था, हम वही रखेंगे, प्लस क्यू चार्ज है ये पॉइंट. नाउ यू वांट टू फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज एट ए डिस्टेंस r. ये पॉइंट कौन है? ये पॉइंट मान लो ये B है. B पॉइंट पे तुम पोटेंशियल एनर्जी निकालना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो. यू वांट टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट B ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज. व्हाट यू विल डू? फर्स्ट द कॉन्सेप्ट इज व्हाट? इन ब्रिंगिंग इन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अच्छा एक काम करते हैं, इस डिस्टेंस को ना जो एस एल अरोड़ा में है उसी के नोटेशन के मुताबिक दे रहे, तो तुम लोगों को समझ में आएगा. दोनों तरफ से कर सकते हो. एक सेकंड, लेट मी क्लियर. आर दिया है, एक सेकंड. हाँ ठीक ही है. आई विल जस्ट चेंज सम नोटेशन. आर पॉइंट पे यू वांट टू फाइंड आउट. नाउ आई विल एक्सटेंड द लाइन. व्हाट आई विल डू, यहाँ पर हमने एक दूसरा पॉइंट लेंगे. यू विल टेक अनदर पॉइंट, अनदर 2 पॉइंट्स. ये दूसरा पॉइंट लिया हमने, सपोज ये पॉइंट है P पॉइंट. ये P पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से कितना दूरी में है? ना सपोज ये P पॉइंट प्लस क्यू चार्ज से x दूरी में है. द डिस्टेंस बिटवीन द P एंड प्लस क्यू चार्ज, P पॉइंट, ये P पॉइंट है, ओके. द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट एंड प्लस क्यू चार्ज इज x. एंड we will take another point to the right side of the P point which is very close to P point. P point से बहुत करीब है. It is very close. It is so, you know the how the small distance are measured. It is denoted as small dx or dr. So let the distance between the another point, P point के जो right side में है, let that point is Z point. ये Z point का distance P से कितना है ना? What is this small distance? This small distance is dx. This small distance is dx. Now tell me, ये dx distance बहुत छोटा है? Yes or no? Reply to all of you. Yes. Let me write this. Just a minute. I am just changing this notation. Distance of z. Sorry,
हम किताब के जो जो बुक में है वही दे रहे हैं ताकि तुम लोगों को किताब देख में समझ में आए. It will be easier for you. Let the distance of z from plus q is x. So distance from x to plus q is x, and the distance between z and p, ये छोटा डिस्टेंस कितना है, ये dx है. Now you know the concept of electric potential. Now suppose you have another charge plus q1, ध्यान से सुनना, plus q1 which is at a point z. q1 पकड़ के भी कर सकते हो या फिर q1 एक सेकेंड, q1 को तुम एक मान कर भी चल सकते हो, q1 को एक मान कर भी चल सकते हो. कैसे हम बोलेंगे? So, अगर देखो ग्रेविटेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए डेफिनेशन में क्या था, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. किसी किसी किताब में प्लस q1 करके स्टार्ट किया, उसके बाद प्लस q1 के जगह पर एक बैठा दिया. दैट यू कैन ऑल्सो डू, बट आई एम हियर डूइंग द प्लस q1 चार्ज. सो प्लस q1 चार्ज को z पॉइंट से तुमने p पॉइंट की तरफ ले गया. कितना? प्लस q1 चार्ज को z से p पॉइंट की तरफ ले गया. तो जब when the प्लस q1 चार्ज at a z point, what was the force of repulsion? दोनों के भीतर फोर्स कितना था? अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, इफ इट इज फ्री स्पेस 1/4π q1 by x square. yes or no? फर्स्ट इक्वेशन. अब तुमने x z से p की तरफ ले गया, q की dx बहुत स्मॉल है. वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन आई एम ट्राइंग टू टेल यू. एज dx इज वेरी स्मॉल, ध्यान से देखो. तो ड्यूरिंग द जर्नी ऑफ द चार्ज प्लस q1, जर्नी मतलब q1 को तो z से p की तरफ ले गए, तो ड्यूरिंग दिस स्मॉल जर्नी और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दोनों के भीतर फोर्स सेम रहा. क्यों? तुम बोलोगे सर p पॉइंट में जब आएगा तब उसका फोर्स क्या होगा, बोलो. F इक्वल्स टू क्या होगा, बोलो. हम इसके बाद डिलीट कर देंगे. p पॉइंट जब z पॉइंट में है ये फोर्स है, जब p में है 1/4πε0, तब जब p पॉइंट में रहेगा तब दोनों का q1 तो रहेगा. नीचे क्या होगा? x माइनस dx. देखो ये टोटल x है और ये कितना dx. तो p पॉइंट के भीतर और प्लस q के भीतर डिस्टेंस कितना है? x माइनस dx. तो देखो इसका होल्स का तो dx तो बहुत स्मॉल है ना, dx इज वेरी स्मॉल. स्मॉल मीन्स इज वेरी वेरी लेस देन 0. तो इसको क्या लिख सकते हो? dx के जगह पे अगर 0 बैठा दोगे तो क्या होगा? 1/4πε0 q1 by x square सेम रहा. So I am trying to tell you that during this journey force remains constant, है कि नहीं? z से p की तरफ जब तुम ले गए, दोनों के चार्ज के भीतर फोर्स कांस्टेंट ही रहा. ये समझना. तो कितना काम करना पड़ा? अभी ध्यान से देखो. व्हाट इज द फोर्स? तुम्हें कौन सी फोर्स के अगेंस्ट में काम करना पड़ रहा है? जब z से p की तरफ जाओगे ये फोर्स किधर रहेगा? इधर रहेगा. रिपल्सन होगा दो, है कि नहीं? ये ब्लैक कलर में क्या दिखा रहा है? फोर्स का डायरेक्शन, है कि नहीं? और दोनों के भीतर डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट को अगर हम ग्रीन कलर देके दिखाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, बोलो. ऑपोजिट में हुआ कि नहीं? रिप्लाई दोगे? यस और नो? द ग्रीन कलर शोज द डिस्प्लेसमेंट. ये कितना है? dx. तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों के भीतर एंगल कितना है, बोलो. 180 डिग्री एज इट इज ऑपोजिट. सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? सिंपल. वर्क डन इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. यू नो वर्क इज इक्वल टू f डॉट s और f डॉट d. क्लास 11 में पढ़े थे. f डॉट s. तो यहाँ पर फोर्स कितना है? f. और डिस्प्लेसमेंट कितना है? dx. यस और नो? तो फोर्स और dx दोनों के भीतर एंगल कितना है? 180. तो वैल्यू लिख दो. वैल्यू f इंटू dx इंटू cos 180. cos 180 का वैल्यू कितना होता है? -1. देख लेना. माइनस एफ डी एक्स. तो वर्क डन कितना हुआ? f डॉट dx. क्लियर? सो f डॉट dx का मतलब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? f का वैल्यू कितना है? हमने कुछ देर पहले ही कर दिया. q1 by 4πε x square. q1 by
4 पाई एप्सिलॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एक आगे माइनस रह जाएगा, है कि नहीं? क्लियर? यस सर। तो ये काम तुम्हें क्या कब करना पड़ा? दिस इज द वर्क डन यू रिक्वायर टू ब्रिंग द चार्ज फ्रॉम Z टू P। dx डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ा, लेकिन पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इंफिनिटी मतलब ये dx डिस्टेंस के लिए, तो टोटल इस वर्क डन को देखो, छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ इसीलिए वर्क डन भी छोटा होगा, तो कितना होगा? इसका नोटेशन चेंज कर, dw as the displacement is very small, so work done is also small, dw. Understand? Now the total work done in bringing the charge from infinity to that point क्या होगा? Total work done is integration of dw, है कि नहीं? dx का इंटीग्रेशन x होता, तो dw का इंटीग्रेशन भी dw होगा, dw का इंटीग्रेशन w होगा, तो बैठा दो, इसका वैल्यू कितना? dw माइनस q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 एक्स स्क्वायर dx। अब q1 तो कांस्टेंट है, तो माइनस बाहर चला जाएगा, q1 भी कांस्टेंट है, बाहर चला गया, 4 पाई एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, बाहर चला गया, इंटीग्रेशन dx बाई एक्स स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या था? पोटेंशियल का डेफिनेशन, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट तो बाद में हम लिख देंगे, फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तुम कौन से पॉइंट में निकालने के लिए जा रहे थे? योर टारगेट इज तो फाइंड आउट द पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट, है कि नहीं? ये सब ना रिप्लाई दोगे? तो जब बी पॉइंट पे होगा चार्ज, जब बी पॉइंट पे आएगा तब एक्स का वैल्यू कितना होगा? बोलो, एट बी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एट बी वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर। ये सब ना रिप्लाई दोगे? और इनिशियली किधर होगा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फ्रॉम इंफिनिटी। इंफिनिटी मतलब एकदम बहुत बाहर, बहुत दूर, इंफिनिटी मतलब इनिशियली किधर था? x इज इक्वल टू इंफिनिटी, है कि नहीं? सो जहां से आ रहा है वहां पर क्या होता है? इनिशियल पॉइंट नीचे होता है इंटीग्रेशन के, और फाइनल पॉइंट ऊपर होता है। ये समझो? तो ये हो गया। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन तो हम बोल दे, तुम मैथमेटिक्स में पढ़े होगे, आई कैन रिपीट नाउ, आई कैन एक्सप्लेन। तो dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो ये माइनस 1 बाई एक्स होता है, माइनस 1 बाई एक्स, है कि नहीं? फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ये माइनस बाहर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या रहेगा? q1 बाई जैसा था 4 पाई एप्सिलॉन 0 वैसा रह जाएगा, और पहले क्या होगा? 1 बाई। लेट मी चेक, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शायद, जस्ट ए मिनट। हाँ, आर टू इंफिनिटी, हाँ ठीक ही है, ठीक ही है। पहले 1 बाई आर आएगा, उसके बाद माइनस 1 बाई इंफिनिटी। तो माइनस 1 बाई इंफिनिटी का 1 बाई इंफिनिटी का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। तो फाइनली क्या होगा? वर्क डन 1 बाई q1 q, लेट मी थोड़ा सा क्लियर कट लिख देते हैं, w इज इक्वल टू q1 4 पाई एप्सिलॉन 0 1 बाई आर, है कि नहीं? 1 बाई आर मतलब आर रहेगा। तो ये काम क्या हुआ? इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, नहीं यूनिट पॉजिटिव नहीं, कितना चार्ज लिया लेकर आए थे? प्लस q1। तो प्लस q1 लाने के लिए तुम्हें इंफिनिटी से, दिस इज द वर्क डन दैट तुम्हें जो निकाला, दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस q1 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट। तो एक यूनिट चार्ज लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा? बोलो, q1 का वैल्यू, तब मतलब उस मामले में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उस मामले में q1 का वैल्यू कितना होगा? 1 प्लस 1, ये सब ना। सो तब ये वर्क दूसरे से एंगल से भी तुम निकाल सकते, यू नो द पोटेंशियल कॉन्सेप्ट। ए मां सॉरी, अब भूले, मुझे दिला, q1 बाई, फिर से हम लिख रहे हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर स्क्वायर था। सो दिस इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग q1 चार्ज। तो q1 चार्ज ब्रिंग करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा? व्हाट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग q1 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट? व्हाट इज द वर्क डन? w।
तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए कितना कम करना पड़ेगा? प्लस Q1 था, प्लस 1 कूलम, कितना होगा? W बाई Q1। तो बैठा दो, W बाई Q1 करो इस इक्वेशन से। W का वैल्यू कितना है? Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर, नीचे और एक Q1 बैठा दो, बस Q1 कट जाएगा। तो क्या होगा? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। दिस इज द वर्क डन, दिस इज द पोटेंशियल। यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने के लिए जितना काम करता है वही तो पोटेंशियल होता है। So that means potential is equal to this. All of you understand? This is a very important derivation. Yes or no? Please reply. Sir. Yes. हाँ बोलो। স্যার বলছি স্যার আপনি মানে স্যার এটা আলটিমেটলি আমরা স্যার মানে ইনফিনিটি কি স্যার পি অফ ভি আনতে মানে বললো স্যার আপনি মানে আর ইনফিনিটি স্যার নিয়েছেন মানে লিমিট স্যার ইন্টিগ্রেশন। কথাটা খুব আস্তে আস্তে একটু জোরে বলো। হ্যাঁ স্যার বলছি স্যার আপনি স্যার মানে আলটিমেটলি আমরা স্যার ইনফিনিটি থেকে মানে পি অফ ভি স্যার মানে চার্জটা নিয়ে পরটা স্যার মেজার করলাম, তার জন্য স্যার আপনি ওই লিমিটটা নিলেন মানে হ্যাঁ, আর আমরা কোথায় বার করছি? Where we are going to find out the potential বা what is the point where we want to find out the potential? B. So ইনফিনিটি থেকে B তে আনতে হবে। তো B তে x কত? R। হ্যাঁ স্যার। আর ইনফিনিটি x এর ভ্যালু কত? ইনফিনিটি প্লাস। হ্যাঁ স্যার। Okay. Now I am going to do the next part that is also important but less important, but if you are going then it is in the syllabus. আমি তো পরে বলছি সাজেশনটা, আগে তো তোমাদের সিলেবাসটা কভার করতে হবে এবং এটা কিন্তু আসে আগের থেকেই বলছি, it comes but it is easier. Now you find out the electric potential due to a dipole. Electric potential due to a dipole. You know what is dipole? Already I have given so many videos, but yes, it is quite natural for the new students. तुम लोगों ने कुछ वीडियो मिला है तुम्हें, so you have not got the sufficient time to see the videos. I request all the new students, please see those videos, okay, during this time gap. I mean to say from today is the Friday, तो next मंडे के अंदर जितना हो सके देख लेना। कोई डाउट्स रहेगा तो तुम्हें हमें बोल देना। तो डाइपोल जानते हो, डाइपोल का क्या रहता है ना, एक पॉजिटिव चार्ज रहता है, एक नेगेटिव चार्ज रहता है। तो डेरिवेशन में देखोगे तो हम लोग क्या करते हैं ना, लेफ्ट साइड में नेगेटिव चार्ज रखते हैं, है कि नहीं? राइट तो और प्लस राइट साइड में क्या रखते हैं? प्लस चार्ज रखते हैं। Now suppose the total distance between these two dipole, मतलब डाइपोल का लेंथ कितना है? Let the length of the dipole is 2a. तो अगर ये मिडिल पोर्शन ऑफ द डाइपोल है, मिडिल पोर्शन से इस डिस्टेंस कितना होगा? a, और ये डिस्टेंस भी a होगा। नाउ सेम केस, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने के लिए हमने बोले थे क्या पर था? एक पॉइंट था एक्सिस के ऊपर और एक पॉइंट था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यहाँ पर भी सेम करेंगे। वी विल कंसीडर अनदर पॉइंट व्हिच इज एट ए डिस्टेंस which is on the axis of the dipole. इस पॉइंट में सपोज लेट दिस पॉइंट इज एट P, तो इस P पॉइंट में हम पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो मिडिल लाइन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, मिडिल लाइन को हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो सपोज द डिस्टेंस ऑफ द P पॉइंट फ्रॉम द मिडिल ऑफ द डाइपोल, मिडिल ऑफ द डाइपोल से P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है? सो लेट दिस डिस्टेंस इज R। तो देखो डाइपोल में कितना चार्ज है? दो चार्ज है, माइनस और प्लस, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो P पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे ना, दो चार्ज के लिए अलग अलग पोटेंशियल निकाल लेंगे, है कि नहीं? जस्ट लाइक द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो माइनस क्यू के लिए P पॉइंट पे कितना पोटेंशियल हो रहा है, प्लस क्यू के लिए कितना हो रहा है, बस दोनों को जो सम कर देंगे। तो सपोज द पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज कितना होगा? बोलो, प्लस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना है? बोलो तो टोटल कितना है? R मिडिल से, और ये कितना है? A। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? R माइनस है कि नहीं? बोलो, टोटल R है और ये कितना है? ये है A। तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा? R माइनस है कि नहीं? ऑल ऑफ यू प्लीज रिप्लाई। ये निकालेंगे। तो फॉर्मूला क्या है किसी भी चीज का पोटेंशियल का फॉर्मूला? अच्छा यहाँ पर R स्क्वायर क्यों रहेगा? कुछ प्रॉब्लम? अच्छा यहाँ पर करेक्शन होगा, सॉरी,
ये तो आर था। क्यू ले ऑल ऑफ यू प्लीज, आई रिक्वेस्ट प्लीज करेक्ट। क्यू Q1 by 4 pi epsilon 0, यहाँ पे नीचे क्या था, आर था। ये ब्लंडर मिस्टेक हो गया, प्लीज ऑल ऑफ यू रख दो। यहाँ पे क्या होगा, आर होगा। ये तो सो ऑल ऑफ यू प्लीज करेक्ट, ये आर होगा, है ना, अंडरस्टैंड। सॉरी फॉर दिस। देखो यहाँ पर आर था ना, क्यू Q1 by 4 pi epsilon 0 into 1 by r, तो इसके बाद क्या होगा, इंफिनिटी 1 by infinity 0 हो जाएगा, तो 1 by r, क्यू Q1 by 4 pi epsilon 0 r। yes or no, प्लीज रिप्लाई। आर होगा, तो आर चार्ज, क्यू चार्ज के लिए आर डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, देखो हमें अभी यहाँ पे रेडीमेड लिख दे, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना हुआ, क्यू प्लस क्यू चार्ज के लिए यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ, क्यू बाई 4 pi epsilon 0 इंटू कितना था, नीचे इंटू नहीं, नीचे ही था, क्या था, आर था। आर क्या था, क्यू चार्ज से बी पॉइंट का डिस्टेंस था आर, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी सेम होगा, तो प्लस क्यू चार्ज से ए का डिस्टेंस कितना है, आर माइनस है, तो पोटेंशियल कितना होगा, क्यू मतलब प्लस क्यू बाई सेम, प्लस मतलब सेम 4 pi epsilon 0, डिस्टेंस कितना है, आर माइनस है कि नहीं। तो इसको हम नाम दे रहे हैं अलग से V सफिक्स P, और हम क्या इसका नाम दे 1, V1 नाम दे रहे हैं, V1। So this is V1 is the potential at P due to plus Q। तो दूसरा क्या होगा, पोटेंशियल at P due to माइनस क्यू चार्ज। P पॉइंट में माइनस क्यू के लिए कितना होगा, सेम V2 अगर उसका वैल्यू होगा, चार्ज कितना है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू होगा। अच्छा, माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस कितना है, देखो मिडिल से इसका डिस्टेंस आर है, और ये डिस्टेंस कितना है a, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, इस मामले में r प्लस है, तो माइनस क्यू बाई 4 pi epsilon 0 r प्लस है, अंडरस्टैंड, यस और नो। तो टोटल पोटेंशियल P पॉइंट में ड्यू टू द डाइपोल कितना होगा, दोनों का सम, टोटल पोटेंशियल एट P ड्यू टू द डाइपोल, मतलब दोनों चार्ज के लिए कितना, डाइपोल मतलब क्या है, दोनों चार्ज एक साथ रहता है, क्या होगा, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 का मतलब हम फिर से दिखा देंगे, 4 pi epsilon 0 इंटू आर माइनस ए था, नीचे था, और उसका माइनस था ना, तो माइनस, ठीक है हम अलग से लिख रहे हैं, माइनस क्यू बाई 4 pi epsilon 0 आर प्लस है, तो दोनों को जोड़ कर दो, सम कर दो, क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, सो क्यू बाई 4 pi epsilon 0 आर माइनस है, माइनस क्यू बाई 4 pi epsilon 0 आर प्लस है, तो क्यू बाई 4 pi epsilon 0 कॉमन ले लो, आर माइनस है, माइनस 1 बाई आर प्लस है, तो दोनों का एलसीएम निकालो, ज्यादा टेंशन मत लो, आई विल कम, जब जिसको लेखा नहीं मतलब रिटन अगर नहीं कर पा रहा, आई विल कम, हम फिर दिखा देंगे। तो हम लेट मी कंप्लीट द डेरिवेशन। तो यहाँ पर एलसीएम क्या होगा, देखो आर माइनस है, आर प्लस है ना, तो क्यू बाई 4 pi epsilon 0 आर माइनस है एंड आर प्लस है, और ऊपर देखो अगर ये एलसीएम होगा तो इस मामले में कितना होगा, आर प्लस से ऊपर रहेगा, आर प्लस है, और इधर माइनस ऑफ आर माइनस ए होगा, यस और नो, एम आई राइट। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ऊपर देखो क्या होगा, हम स्टेप जब नहीं कर रहे, आर प्लस है, माइनस आर, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, तो माइनस आर प्लस आर कट जाएगा, तो क्या पड़ा रहेगा, क्यू बाई 4 pi epsilon 0, ऊपर रहेगा 2a, a प्लस ए 2a, और नीचे रहेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये सब नो। अभी ध्यान से देखो, डाइपोल हम ड्रॉ कर रहे हैं, डाइपोल का पिक्चर ये था माइनस क्यू,
और ये था प्लस क्यू, है कि नहीं? Yes, दोनों के sir. भीतर डिस्टेंस कितना था? 2a था। 2a. तो डाइपोल मोमेंट क्या था, याद है डाइपोल मोमेंट का वैल्यू? 2qa मतलब एनी चार्ज डाइपोल मोमेंट का वैल्यू था दोनों में माइनस क्यू और प्लस क्यू। यहाँ पे तो दो चार्ज था, माइनस क्यू और प्लस क्यू। एक चार्ज का वैल्यू ले लो, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, मतलब एक तो माइनस एक प्लस होगा, लेकिन हमें चार्ज का वैल्यू लेना है। एनी चार्ज वैल्यू इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। डिस्टेंस कितना था? 2a था। सो q इंटू 2a वाज द डाइपोल मोमेंट वैल्यू। तो यहाँ पर q इंटू 2a उधर है, तो इस यहाँ पर क्या लिख दोगे डाइपोल मोमेंट का वैल्यू? सो इट विल बी लाइक p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट पेज। सो पोटेंशियल का वैल्यू ड्यू टू द डाइपोल कितना होगा? सॉरी, p बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? यस और नो? Yes, sir. अभी देखो ध्यान से, यहाँ पर भी एक अप्रोक्सीमेशन रहता है। जस्ट ए मिनट। पिक्चर हम ड्रॉ कर रहे, ध्यान से देख लेना फिर से, मतलब एक ही पिछले स्लाइड में तो जाना संभव नहीं है। ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, है ना? और ये टोटल डिस्टेंस कितना था? 2a था। और ये पॉइंट जो था जहां पर तुम निकल रहे थे, ये मिडिल पॉइंट क्या था अब द डाइपोल? ये डिस्टेंस कितना था? a था। और मिडिल से इसका डिस्टेंस कितना था? r था। तो इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, इसका मतलब क्या था? यही केस हम डाइपोल में भी बोलते हैं। मतलब डाइपोल का जो साइज है उसके मामले कंपेयर टू द साइज ऑफ द डाइपोल, जो तुम पॉइंट जहां पर पोटेंशियल निकल रहे हो वो पॉइंट अगर बहुत दूर होगा, तो पिक्चर हम ड्रॉ करें अप्रोक्सीमेट, तो इसको देखने में कैसे लगेगा? किसी भी किताब में ये पिक्चर नहीं दिया गया है। तो सपोज दिस इज द साइज ऑफ द डाइपोल, ये सर माइनस क्यू और प्लस क्यू। डिस्टेंस और द साइज ऑफ द डाइपोल इज 2a, है कि नहीं? और जहां पर सॉरी साइज ऑफ द डाइपोल इज 2a, but the point where you want to find out the potential, it is far away from the dipole. Now you can visualize the case, yes or no? है कि नहीं? ये पॉइंट A और पॉइंट जिधर तुम पोटेंशियल निकलना चाहते हो वो पॉइंट किधर है? बहुत दूर है। साइज के डाइपोल का साइज के कंपैरिजन से इसका डिस्टेंस बहुत दूर है। जिस पॉइंट में तुम पोटेंशियल निकलना चाहते हो वो डाइपोल का साइज से बहुत बड़ा दूर है कि ना? दिस इज द r। सो हियर यू कैन से r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ये सब ना। तो इसमें क्या होगा? r स्क्वायर भी और बड़ा होगा a से, है कि नहीं? सो मान लो सपोज 100 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, है कि नहीं? तो अगर 100 का स्क्वायर लोगे तो वो क्या होगा? एक से और बड़ा होगा। इसका वैल्यू कितना होगा? 1000। अगर तुम ये दो लो, सपोज 2, तो दोनों के अंतर कितना? व्हाट इज द डिफरेंस? 98। यस और नो? तो 100 स्क्वायर देखो, ये एकदम सामना सामनी देख सकते हो। 100 स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर से और बड़ा होगा। क्यों? ये कितना होगा बोलो तो? 2 स्क्वायर 4 हो रहा है, तो दोनों का अंतर कितना है? बहुत बड़ा हो रहा है। पहले 98 से अभी गैप बहुत बढ़ गया। तो इस मामले में क्या होगा? अगर किसी संख्या से दूसरे संख्या को तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, जिसको तुम सब्ट्रैक्ट कर रहे हो वो नंबर अगर बहुत छोटा होगा तो क्या होगा? उसका डिफरेंस लगभग वही रहेगा, है कि नहीं? सपोज 1 करोड़, तुम अगर 1 करोड़ से 1 माइनस करोगे तो क्या होगा? वो अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ ही रहेगा, है कि नहीं? तो ये भी इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, तो r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर। तो तुम इसमें जैसे कि हम डाइपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक फील्ड में बोले थे, न्यू स्टूडेंट्स के लिए हम ये बोल रहे हैं, तो r स्क्वायर एज r स्क्वायर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a स्क्वायर, तो r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर ही रहेगा, है कि नहीं? तो इस मामले में इफ r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन a, दैट मीन्स तब क्या होगा? r स्क्वायर
विल बी ऑल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन स्क्वायर। तो यहाँ पर ये कैसा रहेगा, तो v इक्वल्स टू क्या होगा, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस स्क्वायर क्या होगा, बोलो आर स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला, फाइनल रिलेशन व्हेन r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए किसी भी पॉइंट में पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा p by 4 pi epsilon 0 r square. All of you understand? Yes or no? Please reply. Now Yes, sir. tell me which slide you want to see, one by one. Sir, from first will you show once? আচ্ছা অন্যের সাথে আমি আসছি, সবারটাতে আসবো, বাকিরা একটু বলবে। আমি তাহলে প্রথম স্লাইডেই চলে যাচ্ছি, সবাই যাতে দেখতে পারো। হ্যাঁ স্যার একদম মানে চেক করে নেবো স্যার। Yes, all of you take the snapshots. It will be better for you. Done, sir. All of you done? হ্যাঁ স্যার। All of you, I think, okay. Next slide I am going. Yes, sir, done. All of you done? If anyone left, tell me, otherwise I will move to the next slide. Anyone left? Okay. Next slide. Slide number 3. All of you take the snapshot. If you in a laptop or computer, you can Done, sir. take snapshot, or mobile or Done, sir. snapshot is available. বলুন স্যার। Fourth slide. It is a fourth slide. All of you done? Yes, sir. Yes, sir. Next slide. Done, sir. Yes, sir. Next slide. Done, sir. Next slide. Done, sir. হ্যাঁ স্যার। Next slide. Done, sir. Yes, sir. Next slide. Done, sir. Yes, sir, done. Done, sir. Done, sir. So, স্যার নাইন, हाँ बोलो। স্যার নাইনথ দেখাবেন স্যার, নাইনথ। 9. Okay. This is the 9th slide. This slide. ইয়েস স্যার। So in the next class I will discuss the last next part में हम डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जो लास्ट केस है, तुमने देखा था तुम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी दो केस में, एक लाइन में और दूसरा एक्सिस में, और दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकाला जाता था। इसा यहाँ पर भी सेम होगा, एक एक्सिस में निकाले, दूसरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में निकालेंगे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में देखोगे पोटेंशियल 0 होगा, बहुत ही इजी। और दूसरा कंपैरिजन, यही लास्ट पार्ट हम बोलेंगे। तुम लोगों ने देखा था कि पोटेंशियल, कैन यू टेल मी व्हाट वाज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट? सो कंपैरिजन थोड़ा बोलना पड़ेगा हमें। ये माइनस क्यू था, यू कैन चेक योर नोट्स। माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, बोलो कितना है डिस्टेंस? 2L1 इसमें 2L था। अच्छा देखो, एक चेंज कर लेना। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब बोले थे तो दोनों का डिस्टेंस हमने एल बोले थे, 2L बोले थे। अब पोटेंशियल जब बोले यहाँ पे 2A बोले, तो ये एक ही रखना, ठीक है। नोट्स में थोड़ा सा चेंजेस कर देना। तो यहाँ पर हमने जो एल बोले हैं, ए बोले हैं, वहां पर एल बोल देना।
अंडरस्टैंड? तो अब तुम्हें दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगा, अंडरस्टैंड? तो अगर ये एल होगा तो ये एक्सप्रेशन कितना होगा बोलो? व्हाट विल बी द एक्सप्रेशन? आर के जगह पे एल लिख दो, तो पोटेंशियल कितना होगा? पी बाई 4πε0 आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर ही रहेगा, है ना? डाइपोल मोमेंट से करोगे तो सेम ही रहेगा। तो एक बार देखो, जब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में कितना था? जब ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस था, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? देख लेना, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ था 2p बाई, चेक कर लो, 2p बाई 4πε0 आर क्यूब है कि नहीं? और पोटेंशियल यहाँ पर कितना मिला अभी जो आज की है? p बाई 4πε0 आर स्क्वायर। तो दोनों में अंतर ध्यान से देखो, एक चीज हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 2p है, 2p, और यहाँ पर पोटेंशियल में p है। दिस इज द फर्स्ट कंपैरिजन, यस और नो? और दूसरा चीज देखो, द सेकेंड थिंग यू हैव टू नोटिस दैट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड देयर इज r cube and here in the potential there is r square. That means electric field due to a dipole at a far away point, that is also called far away point, that is r is greater, very very greater than n, क्या होता है? तो यहाँ पर इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है? r क्यूब से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और पोटेंशियल क्या हो रहा है? पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r square. All of you understand? Yes. दिस इज द मेन कंपैरिजन। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन में भी आता है, ये एमसीक्यू। हाँ, रिया कुछ बोल रहा है, बोलो रिया, व्हाट इज योर क्वेश्चन? हेलो, एनीवन? ओके, सो इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, बट पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट द सेम पॉइंट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. All of you understand? And you can also please take the snapshot of the screen. So next class I will discuss the potential due to dipole at a perpendicular bisector which is 0. हाँ बोलो, any doubt? Okay, so next class I will discuss the potential due to dipole at a perpendicular bisector and electric field and potential relation. The relation between electric field and potential, that derivation, that is E is equal to minus dV dr. I am writing the equation. This derivation I will discuss. First I will discuss the potential due to dipole at a perpendicular bisector. Second thing is E is equal to minus dV dr. उसके बाद हम बोलेंगे what is the equipotential surface, or what do you mean by equipotential surface? किताब में, बुक में जो है उसके बाहर भी हम बोलेंगे, फिजिकली हम समझाएंगे, मैथमेटिकली भी बोलेंगे. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. तो नेक्स्ट क्लास में पोटेंशियल चैप्टर का 50% हो जाएगा, बाकी 50% के लिए और 2 क्लास लगेगा. तो अप्रैल के एंड के भीतर ही आई थिंक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आई विल कंप्लीट. ओके, so all of you have a good day, good night. I am very exhausted now. I will clear all your doubts in the next class on the Monday. So Monday is at the same time. Time is of the class is at 9 p.m.